کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ کیسی گزر رہی ہیں آپ کی ویکیشنس؟ بہت اچھی گزر رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسکول اب ری اوپن ہو رہے ہیں تو آپ نے اب اسکول آنا ہے. انشاءاللہ ہم اسکول میں ملیں گے. اور آج آپ کا 4 کلاس کا یہ سیکنڈ ٹرم کا آن لائن جو ہے وہ لیکچر، وہ لاسٹ لیکچر ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسکول میں ملیں گے اور اسکول میں آپ آئیں گے انشاءاللہ. تھرسڈے کو اوپن ہو رہے ہیں نا اسکول. اور پھر آپ کے فرسٹ ٹرم ایگزامس بھی ہوں گے، آپ کو ڈیٹ شیٹ بھی دے دی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ ٹرم کی ایگزام کی بہت اچھی سی تیاری کرنی ہے. اور سیکنڈ ٹرم کو بھی آپ نے جو بھی نوٹس ہیں وہ اسکول میں اویل ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اب تک کے جتنے لیکچرز ہو گئے ہیں ان کے نوٹس آپ کو اسکول سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. آج ہمارا جو لیکچر ہے 4 کلاس کا لیکچر ہے نا، جماعت چہارم کا، اور اردو مضمون کا لیکچر ہے اور دوسری مدت کا یہ دوسرا لیکچر ہے. ٹھیک ہے. اسکول میں آن لائن جو لیکچر دے رہے ہیں یہ دوسری مدت کا سیکنڈ ٹرم کا سیکنڈ لیکچر ہے. اور آج ڈیٹ 14 ستمبر ہے. اور آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے اچھا شہری. سبق نمبر 8 ہے. آپ سب اپنی جو کتابیں ہیں وہ کھول لیں اور ساتھ میں ریزر پینسل بھی رکھ لیا کریں تاکہ اگر آپ کوئی انڈر لائن کرنا چاہیں ورڈ وہ کر سکتے ہیں، الفاظ. اس کے علاوہ آپ مشق بھی ساتھ ساتھ حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سبق میں ریڈنگ تو آپ کو پتہ ہے جیسا کہ آپ خود ہی زیادہ تر کرتے ہیں. میں صرف آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اس میں مین جو سبق کا عنوان ہے وہ اچھا شہری ہے. ٹھیک ہے. سبق کے عنوان کے حساب سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سبق میں کیا کہا گیا ہے. اچھا شہری ہونے کا کے جو خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اور ہم خصوصیات کے بارے میں اگر آپ کچھ نہیں جانتے، بہت کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، بہت کچھ ہمیں اسکول سے پتہ چلتا ہے، بہت کچھ ہمیں ہمارے پیرنٹس بھی بتاتے ہیں، والدین بھی بتاتے ہیں، لیکن جو آپ کا سبق ہے آپ یہ اس سے بھی آپ بہت کچھ جان سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ سبق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. چھٹی کا دن تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، نوید صاحب اپنے بچوں کو فیلڈ پارک میں سیر کے لیے لے گئے. اب یہ کہانی کس کی ہے؟ یہ نوید صاحب اور ان کے بچوں کی ہے. تو کچھ دیر کھیلنے کے بعد عبداللہ اور عائشہ ابا جان کے پاس گھاس پر بچھی چادر پر بیٹھ گئے. کہاں گئے تھے؟ وہ پکنک منانے گئے تھے پارک میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کیا ہوا، جب عائشہ نے لفافے میں بسکٹ اور چپس کے پیکٹ نکال کر ابا جان اور عبداللہ کو دیے اور خود بھی کھانے لگے. ارے یہ کیا؟ عبداللہ اور عائشہ نے خالی ڈبے وہیں ہے گھاس پر پھینک دیے. اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. اگر ایسے ہی تمام لوگ کچرا پھینکنے لگ گئے تو ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگ جائیں گے. ابا جان نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ناراضی سے کہا. دیکھا. اب یہ پیرنٹس جو ہیں یہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا سب کچھ کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب وہ دیکھتے ہیں اپنی آئیز کے ساتھ، آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے اسکول میں دیکھتے ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں. اگر دیکھنے سے بھی ان کو نہیں پتہ چلتا تو پھر ان کو بتانا بھی پڑتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے. جس طرح عائشہ اور عبداللہ کے ابا جان نے ان کو بتایا کہ جب انہوں نے جوس کا ڈبہ اور بسکٹ کے لفافے جو زمین پر پھینکے، پارک میں تھرو کیے، تو پھر کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ صفائی کیسے رکھتے ہیں. ظاہر ہے ہم بھی جب ریپرس گھر میں آج کل جیسے آپ کو چھٹیاں ہیں آپ بھی اسنیکس کھاتے ہوں گے اور ان کے ریپرس جو ہیں ضرور ڈسٹ بن میں تھرو کرتے ہوں گے اور ڈسٹ بن میں ہی تھرو کرنے چاہیے. ظاہر ہے ہمارا گھر ہے، ہمیں صاف رکھنا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے نا، اپنا گھر صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. اور جب ایک دفعہ صفائی ہو جاتی ہے پھر تو ماما بالکل بھی کہتی ہیں کہ اب بالکل کسی نے کوئی ربش نہیں تھرو کرنا، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا، تو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے سب نے. اسی طرح سے ہمارا ملک ہے، اسی طرح سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. جب ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں پھر اپنی گلی کو صاف رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جب سب اپنی گلی کو صاف رکھتے ہیں تو پورا محلہ صاف ہو جاتا ہے. اور محلہ صاف ہوتا ہے تو آبویسلی ہمارا پورا شہر اور پھر ہمارا ملک. تو صفائی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. نصف ایمان کا کیا مطلب ہے کہ آدھا ایمان ہے.
صفائی बहुत ज़रूरी है, पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है. जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए ये कहा जाता है कि नमाज की शर्त है कि पाकीज़गी. तो जब हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं, तो हम पाक साफ रखते हैं. हमने सुबह उठकर भी नमाज़ पढ़नी है, हमने रात को सोने से पहले भी नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद दिन में दोपहर को भी शाम को भी. ठीक है, हमारी 5 नमाज़ें हैं. तो 5 नमाज जब हमने पढ़नी है तो हमें अपनी सफाई का ऑटोमेटिकली ख्याल रखना है. और जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो ज़रूर ख्याल रखते हैं, क्योंकि पाकीज़गी जो है वो निस्फ़ ईमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है. जब हम अपने आप का ख्याल रखना शुरू करते हैं तो हमें इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है उसका खुद का खुद एहसास होता है कि हम तो साफ़ हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द गंद नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फैला होना चाहिए. तो फिर हम अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं. अब इस सबक में क्या करना है, ट्रैफिक के इशारे में आप यहाँ पर आ जाते हैं. घर जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक के इशारे की बत्ती सुर्ख होने पर अब्बा जान ने गाड़ी रोक दी, मगर पास ही से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई. अब्दुल्ला बेचैनी से कहने लगा, ये तो हम सबसे आगे निकल गए, हम क्यों रुके हुए हैं. अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, सफ़र पे जा रहे होते हैं, तो रास्ते में हम अपनी अगर गाड़ी पर होते हैं या बस पर होते हैं तो हम बाहर देख रहे होते हैं, विंडो में से खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं. और जब हमसे कोई गाड़ी आगे गुजरती है तो हम अपने अब्बा जान से कहते हैं, पापा से कहते हैं, या फिर हमें अगर हम बस में हों तो फिर तो हम ड्राइवर से नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये हो रहा होता है साथ कि हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमें आगे निकलना चाहिए. और हम अपने पापा से कहते हैं कि जल्दी गाड़ी चलाएं, तो हमने आगे निकलना है. तो ये क्या है, ये बुरी बात है. और इस तरह से एक्सीडेंट जो है हादसा का सबब बनता है. तेज़ गाड़ी चलाना, जो गाड़ी चलाने के असूल हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए. अच्छा शहरी वो होता है जो मुल्क के कवानीन की पाबंदी करता है, चाहे वो सड़क पर सफ़र कर रहा हो तो हर जगह के कुछ असूल होते हैं. जैसे कि आपके स्कूल के कुछ असूल व ज़वाबित हैं कि टाइम वक्त पर आना है, स्कूल का टाइम है, वक्त पर छुट्टी होगी, यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए और लेट नहीं होना चाहिए. ये सब स्कूल के कानून होते हैं. इसी तरह से जो सड़क पर जब सफ़र करती हैं तो उसके भी कुछ कानून होते हैं. उसमें उन्होंने गाड़ी की स्पीड बताई होती है, रफ्तार बताई होती है कि इससे ज़्यादा रफ्तार जो है वो इस रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी नहीं चलानी. ठीक है, और हैवी व्हीकल्स की अलग रफ्तार होती है, स्लो व्हीकल्स की अलग रफ्तार होती है. ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने ट्रैफिक के कुछ इशारे दिए हैं, वो तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. जैसे सुर्ख बत्ती है, सब्ज़ बत्ती है और हरी बत्ती. सुर्ख, सब्ज़ और लाल बत्ती. सुर्ख है, सब्ज़ है और पीली बत्ती है, 3 है. ठीक है, सुर्ख और लाल तो एक ही होता है, सब्ज़ और हरा भी एक ही होता है. तो उसके बाद पीली बत्ती, 3 बत्तियाँ होती हैं, 3 लाइट्स होती हैं. तो वो कौन कौन सी होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन, जिसकी आप अक्सर प्ले बुक से आप नज़म पढ़ते चले आ रहे हैं, रेड लाइट. इसी तरह से ये वाली जो हैं ये बत्तियाँ ये सड़क पर लगी होती हैं. और जब ट्रैफिक होती है तो जब रश हो जाता है, जब वहाँ पर जो चौक होता है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, तो फिर रेड लाइट ऑन हो जाती है और फिर ट्रैफिक को रुक जाना चाहिए. और पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है. और जब पीली बत्ती जलती है तो इसका मतलब है तैयार हो जाना चाहिए. और जब सब्ज़ बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि चल पड़ना चाहिए. इसलिए ये ट्रैफिक के असूल हैं और इनको फॉलो करना हम सब के लिए ज़रूरी है. और दूसरी बात ये कि जिस तरह एम्बुलेंसेस होती हैं वो उनमें ज़ाहिर है आपको पता है कि मरीज़ लोग होते हैं, उन मरीज़ों को अस्पताल लेके जाने के लिए होता है. अगर वो आ रही है रास्ते में तो हमें उसको ज़रूर रास्ता देना चाहिए. ठीक है, और जैसे ही कोई इशारे भी होते हैं ना ट्रैफिक के, तो इशारा देता है तो हमें उसके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए. राइट का इशारा होता है, दाएं साइड का, बाएं साइड का. ठीक है, उन लाइट्स को फॉलो करना चाहिए. उसके बाद घर में जब वो लोग घर में आ जाते हैं, घर में दाखिल होते हैं, उन्होंने अम्मी जान को सलाम किया. अम्मी जान शाम को दावत में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी. आयशा ने अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान आप अभी से क्यों तैयारी कर रही हैं? अम्मी जान ने जवाब दिया, बेटा वक्त पर पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि अपनी तैयारी पहले ही कर लें.
बात से क्या सबक मिलता है? इस बात से ये सबक मिलता है कि वक्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है, लेकिन स्कूल एक टाइम पे लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ों का एक टाइम मुकर्रर किया है। फजर का सूरज निकलने से पहले है, मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद है, इशा का रात को सोने से पहले है, ज़ोहर का सूरज जब सवाल ज़ुहर होता है तब है, फिर सूरज जब थोड़ा सा ढल जाता है तो फिर असर का टाइम हो जाता है। इस तरह से 5 नमाज़ों का टाइम है। हम उस टाइम में नमाज़ पढ़ते हैं। वो टाइम हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है, बाकायदगी सिखाता है, हमें तरबियत। ये नमाज जो है ये हमें तरबियत करती है हमारी कि हम वक्त के पाबंद रहें। जिस तरह हमें किसी ने इनवाइट किया, हमें दावत पे बुलाया, तो हमें चाहिए कि हम उस टाइम पर पहुंच जाएं। अगर हमने स्कूल जाना है तो हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए, अगर हमने किसी दफ्तर में जाना है तो हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो वक्त की पाबंदी करती हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। अगर सुबह स्कूल है तो हमें रात को कपड़े प्रेस करके रखने चाहिए, शूज़ पॉलिश करके रखने चाहिए, बुक्स बैग में डाल के रखनी चाहिए। मॉर्निंग में सुबह उठकर कुछ भी डालने की ज़रूरत ना पेश आए। इसी तरह से अगर हमने कहीं जाना है तो वक्त से पहले उसकी तैयारी ज़रूरी है। अब्दुल्ला ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा कि जैसे मैं रात ही को अपने स्कूल की तैयारी कर लेता हूँ, और पता है कल मेरा एक दोस्त स्कूल में खाने के वक्फे के दौरान में गिर गया और इसके खाने का डिब्बा भी उलट गया। मैंने जल्दी से उसे उठने में मदद दी और अपने खाने में इसे शरीक भी कर लिया। ये सुनकर अब्बा जान ने अब्दुल्ला को शाबाश दी और कहने लगे, दूसरों की मदद करना और अपनी चीज़ों में इन्हें शरीक करना तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा शहरी होने के लिए इसमें हमें 2 बातों का और पता चल गया कि एक ये कि अब्दुल्ला ने अपने दोस्त की मदद की। कैसे मदद की? वो गिर रहा था तो अब्दुल्ला ने उसको पकड़ लिया और उसको उठने में मदद दी। तो किसी की मदद करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब हमें कोई सामने कोई नज़र आ रहा है कि हमें उसकी मदद की ज़रूरत है, किसी बुज़ुर्ग होते हैं उन्होंने सड़क क्रॉस करनी होती है, तो हमें पता है कि वो नहीं कर सकते, अगर उनको नहीं नज़र आता ठीक से तो हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। अगर रास्ते में कोई पत्थर है, ईंट पड़ी है, तो वो हमें उठाकर साइड पे कर देनी चाहिए। कोई केले का छिलका जिस तरह उसके ऊपर से लोग फिसल जाते हैं, उसको अगर वो गिरा हुआ है तो उसको उठाकर एक साइड पे डस्टबिन में या किसी साइड पे कर देना चाहिए अगर रोड पर है। आपको पता है इससे आपको एक तो बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, आपके दिल को सुकून मिलता है और हमारा मुल्क भी तरक्की करता है, साफ़ सुथरा रहता है। और दूसरी बात ये कि उसने हमें खाने में अपने दोस्त को शरीक किया, तो शेयरिंग, शराकतदारी, अगर हम अपनी चीज़ किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला उस चीज़ में बरकत डाल देता है। ये सब बातें हमें 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई, इन पर अमल भी करके दिखाया और हमें बताई भी, और हम सब इन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। तो आपका ये सबक जो है ये इन 3 बातों के मुतालिक है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। जब कोई बात करता है तो अच्छे अंदाज में बात करें, नरम लहजे में बात करें, तेज़ तेज़ ना बात करें, गुस्से से ना बोलें, और अपने हमसायों का ख़ास ख्याल रखें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगर वो आपके घर के आगे बाज़ बात होता है पूरा फेंक देते हैं तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। आप 1 बार उठाएँ, 2 बार उठाएँ, उनको खुद भी एहसास होगा कि ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी की चीज़ को उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करें। तो आयशा कहने लगी, अब्बा जान मैं तो अपने स्कूल में इन बातों का ख्याल रखती हूँ और अपने असातिज़ा की तवज्जो से बातें सुनती हूँ और इन पर अमल भी करती हूँ। और दूसरी बात ये देखें, स्कूल का भी मैनर्स आ गए इसमें कि स्कूल में अच्छे से रहना चाहिए। जब टीचर लेसन पढ़ा रही हैं, सबक पढ़ा रही हैं, तो उसको गौर से सुनना चाहिए और अपने फेलोज़ के साथ, अपने जमात के साथ जो आपके तालिब इल्म हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और मस्जिद में जाने के बारे में भी बताया गया है कि मस्जिद में जब जाना चाहिए तो आराम से बैठना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। और ये सब बातें जो हैं ये अच्छे शहरी होने की अलामत हैं, और ये खूबियाँ हर शहरी में हों तो क्या बात है। एक अच्छे मुसलमान इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी आदत को अपनाए ताकि वो खूब भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे और इसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग भी मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। इन छोटी छोटी बातों पर अमल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ज़रा सी मेहनत और तवज्जो से हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं
ये हमारा आज का था सबक, अच्छा शहरी। इसके अब हम अहम अल्फाज जो हैं वो देख लेते हैं। खुशगवार, शर्मिंदगी, ट्रैफिक, अखलाक और मुतमईन। ठीक है, ये 5 अल्फाज हैं, ये आपकी किताब पर दिए गए हैं। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसकी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करें, इसकी मशक करें। और ये इम्ला के अल्फाज होते हैं, आपको पता है कि ये आपके इम्तहान में क्वेश्चन आता है, इनका एक पूरा सवाल होता है। उसके बाद है अल्फाज मायनी, ये आपकी किताब में अल्फाज मायनी है, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, अल्फाज मायनी ये आपने याद कर लेने हैं किताब से, और इनको भी लिखने से इनकी प्रैक्टिस करें, मशक करके इनको याद करें। उसके बाद ये सवाल के जवाब आते हैं, ये आपको सबक में से मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताया था कि नोट्स जो हैं वो स्कूल में मिल रहे हैं, जितने अब तक लेक्चर हो चुके हैं दूसरे मुद्दत के। तीसरा जो हमारा सवाल है इसमें तो वैसे तब्दील के बाद तो ये दूसरा है, ये मशक़ अल्फाज मायनी अलग से एक क्वेश्चन है कि ये दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। ये तो बहुत आसान है, ये आपको कीजिएगा। बच्चों ने खाली डिब्बे फेंक दिए चादर पर, घास पर, ज़मीन पर, किस मेज़ पर। तो वो कहाँ पर थे? वो पार्क में थे, तो उन्होंने ज़मीन पर फेंके थे। तो ज़मीन के जिस तरह ये दायरा लगा हुआ है, इसी तरह से आप दायरा लगाएंगे और बाकी भी इसी तरह से किताब पर हल कर लेंगे मशक़। उसके बाद अल्फाज साज़ी है, इसमें हमने एराब लगाने हैं, दिए गए अल्फाज पर एराब लगाएं। ठीक है, ये क्या लफ्ज़ है? ये है इर्द गिर्द। तो इर्द में किसकी आवाज़ आ रही है? ई की आवाज़ आ रही है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर ज़ेर लगाएंगे। अलिफ ज़ेर इर्द, गाफ से रे गिर्द, इर्द गिर्द। और से देखें इसको, इर्द गिर्द। उसके बाद है तवज्जो, ता तो नहीं पढ़ना, इसको तवज्जो इसके ऊपर। ठीक है, तवज्जो, तवज्जो इसमें भी ज़बर लगेगी, इसमें भी ज़बर लगेगी। उसके बाद है मुनासिब, मेम पेश मू, नून ज़बर ना, सिन ज़ेर बे सिब, मुनासिब। ठीक है, तवज्जो। अच्छा, यहाँ पर ये तवज्जो होगा। ठीक है, पेश आएगा तवज्जो। ठीक है, इर्द गिर्द, तवज्जो, मुनासिब, अस्सातिज़ा, अलिफ ज़बर, सीन अलिफ सा, असातिज़ा। ठीक है, बस इतना, असातिज़ा। उसके बाद है फेंक, इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं असातिज़ा, फेंक, फे ज़बर ये आइन, फेंक, काफ, फेंक। इर्द गिर्द, तवज्जो, मुनासिब, असातिज़ा और फेंक। ये आप इसको देख सकते हैं, इर्द गिर्द, तवज्जो। इसमें पेश आना है क्योंकि जो की आवाज़ आ रही है, ऊ की आवाज़ आ रही है। मुनासिब, मीम पे भी ऊ की आवाज़ आ रही है, असातिज़ा और फेंक। उसके बाद अगला आपका जो सवाल है वो है मायनी लुगत में तलाश करें इन अल्फाज के तवज्जो। सबसे पहले तवज्जो का क्या है? ध्यान। कहते हैं ना टीचर पढ़ाती हैं कि तवज्जो से लेक्चर सुने। ध्यान, अपनाना। उसके बाद अगला है अपनाना, कबूल करना। मुनासिब, दुरुस्त। बाअदब, अदब करने वाला। परवाह, फिक्र। ठीक है, ये आपने अल्फाज के मायने हैं। वैसे तो ये है लुगत में तलाश करने थे
आपने, लेकिन मैंने आपके आसानी से आपको यहाँ बता दी है। उसके बाद जुबान दानी है, सिफ्ते निस्बती, वो इसम जो किसी चीज़, जगह या शख्स से अपनी निस्बत ज़ाहिर करे, इसे सिफ्ते निस्बती कहा जाता है। बोलने में ये लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन ये इनकी जो तारीफ़ है ये बहुत आसान है। जैसे यहाँ ईरानी कालीन लिखती है, इस शुरू में कालीन का ताल्लुक या निस्बत ईरान से है। एक तो जगह होती है ना, वो जगह है उसे कहते हैं हम, ठीक है, निस्बत एक जगह होती है, एक उस जगह की चीज़ होती है। जो चीज़ होती है फिर वो क्या होती है, वो होती है मौसूफ, और जिस जगह की होती है उसे फिर हम कहते हैं, या जिस वजह से वो चीज़ मशहूर होती है वो होती है सिफ्ते निस्बती। यानी कि अच्छाई की वजह से मशहूर हो तो वो सिफ्ते निस्बती है, या बुराई की वजह से मशहूर हो तो वो भी सिफ्ते निस्बती है। लेकिन कोई चीज़ जैसे कि क्या कहते हैं, टोपी है, तुर्की टोपी मशहूर है, तो हम क्या कहेंगे, तुर्की टोपी, तो तुर्की क्या होगी, सिफ्ते निस्बती, और मौसूफ क्या होगा, वो टोपी होगा। ये आप यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह टोपी है और ये तुर्की है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे, ये मिलाना है आपकी किताब में भी है ये। और पहाड़ी रास्ते, ये तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना अल्फाज, पहाड़ी रास्ते, नमकीन चाय। कोई किसी भी चीज़ की खूबी आप कह सकते हैं, किसी भी चीज़ की खूबी जो होती है ना वो सिफ्ते निस्बती होती है, और जिस चीज़ की होती है वो मौसूफ कहलाती है। आपकी बुक में और भी है किताब में, ये मुल्तानी हलवा है, ठीक है, काबली नार है, ये आप खुद इसको मैच कर सकते हैं। जिस तरह और भी इसमें हो सकता है कि मेरे अब्बू काबली नार लेकर आए, मुल्तानी हलवा मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ भी पाकिस्तान में जहाँ की जो चीज़ मशहूर होती है, तो जैसे लाहौर में सीरी पाए बहुत मशहूर होते हैं, तो हम कहते हैं कि नाश्ता जब लाहौर जाते हैं तो हम ज़रूर नाश्ता वहाँ करते हैं कि लाहौर के सीरी पाए बहुत मशहूर है। इस तरह से जो सीरी पाए वो क्या हो गया, सिफ्ते निस्बती हो गया ना, लाहौरी सीरी पाए, तो ये सिफ्ते निस्बती और मौसूफ हो गया, तो इनको हमें आपस में मिलाना है जैसा कि। उसके बाद आता है फेल की मुताबिकत फाइल के साथ। फेल किसे कहते हैं, फेल कहते हैं किसी काम का करना। जैसे इस वक्त मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मैं, ये मेरा फेल है। और फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है, फाइल होता है जिस पर वो काम किया जाता है, यानी काम करने वाला। तो फाइल और मफूल को जो है वो क्या करना है, अगर फाइल सिंगल होगा, वाहिद होगा, तो फेल भी वाहिद होगा, ये आपने ख्याल रखना है। जब फाइल जमा होगा तो फेल भी जमा होगा। जैसा कि फाइल क्या है, सितारा, और फेल क्या है, चमकना। सितारा चमकता है, क्या होता है, सितारा चमकता है। इसमें ये क्या है, ये है फेल, काम का करना, और जिस पर काम किया गया है, जो काम कर रहा है वो क्या है, वो है फाइल, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं। तो अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हम कहेंगे लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लड़के जो होंगे फाइल होंगे, और जाते क्या होगा, वो फेल होगा। लड़की पढ़ती है तो लड़की क्या होगा, लड़की फाइल होगी, और पढ़ती है फेल होगा। ये सब इसी तरह से है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी किताब में है, ये आपको समझना बहुत आसान होगा। मोनस का उन्हें अलग बताया, मुज़क्कर का अलग बताया, जमा का अलग बताया, वाहिद का अलग बताया, सारा बताया गया है। आप इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आखिरी आपका जो है वो है खाली जगह में कुछ लफ्ज़ लगा कर चुनकर लिखें। आपके अल्फाज दिए गए हैं, और ये खाली जगह हैं, आपने यहाँ से अल्फाज देखने के कौन सा यहाँ पर मुनासिब लगता है, तो आपने वो यहाँ पर फिल करना है। अम्मी जान खाना पका रही हैं या पका रही है, जाहिर है इज्जत देते हैं अम्मी जान को, तो पका रही हैं। इसी तरह से आप ये सारा पूर्ण करेंगे। उसके बाद लिखाई की महारत है, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए अच्छा शहरी होने के लिए। तो यहाँ पर आप खुद से अच्छा शहरी होने के लिए चंद बातें लिखेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 खाली जगह हैं, जो आप मुनासिब अच्छा शहरी की मिसाल देकर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और आज का ये हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म हुआ है।
تو یہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے. سبق نمبر 8 کی نل پانی اور مشقی سوال جو ہیں وہ آپ نے کتاب پر حل بھی کرنے ہیں اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اسکول میں ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ بہت تیاری کے ساتھ اسکول آئیے گا اور خوش ہو جائیں گے. اسکول کھل رہے ہیں، ہم تو بہت خوش ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.